and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Rajni Sharma and today we will discuss some of the questions from the topic thermodynamics. तो thermodynamics मैंने already discuss कर रखा है. अगर आपने topic miss कर दिया है then I have given the link of thermodynamics in the description box. तो दोनों language में present है thermodynamics, one in Hindi and one in English. But the questions I will discuss यूजिंग बोथ द लैंग्वेज सो दैट आप दोनों लैंग्वेज इजली, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है या जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से समझ जाए. ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने CSIR JRF नेट के एग्जामिनेशन से लिए हैं एंड आई हैव मेंशन द ईयर एंड द पार्ट फ्रॉम विच आई हैव टेकन द क्वेश्चन. जिस ईयर और जिस पार्ट से मैंने क्वेश्चन लिया है मैंने मेंशन कर दिया है. कुछ क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर रही हूँ because questions asked from the thermodynamics portions are quite easy. ये quite easy होता है but student miss the question. क्यों? क्योंकि उनको जनरल ट्रिक नहीं पता है कैसे सॉल्व करते हैं. जनरली मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं all those are quite simple. Just we need to mug up the formulas of that questions. इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना होता. तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. The question is equilibrium constant of non-covalent interaction between two non-bonded atoms of two different groups was measured at 27 degrees Celsius. It was observed that K क्या होता है? Equilibrium constant. K is equals to 100 per molar. The strength of these non-covalent interactions in terms of Gibbs free energy change is, हमें Gibbs free energy change इसका मतलब क्या है? We have to calculate here del G value. Okay, K we have given here, temperature is given. So we know कि हम लोग जब भी temperature use करते हैं that we use in Kelvin because our answer is also in Kelvin. So what we will do to convert degree Celsius into Kelvin? 27 plus 273. Okay, आप इसको जब सम करोगे then what we will get the temperature? We will have the temperature of 300 Kelvin. Next point यहाँ पर है that energy is expressed in calories. Energy को हमें कैलोरी में रखना है. For that we will take the value of R which is gas constant in calorie. तो कैलोरी की टर्म्स में गैस कांस्टेंट R का वैल्यू क्या होता है? 1.99 per calorie, per Kelvin, calorie per mole. Okay, तो इन सब वैल्यूज को कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो आप देखो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीन चीज ही गिवन हो. वन, सेकेंड इज द टेम्परेचर एंड थर्ड इज द R विच इज द गैस कांस्टेंट एंड फोर्थ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सारा चीज फिट करता है, दैट इज del G is equals to -2.303 RT log K. Now just put all the values in the formula, will give you -2.303. R value we will take here 1.99. It is approximate value. Okay, temperature is 300 and log of 100 will be what? We can express 10 to the power 2. 100 को हम लोग लिख सकते हैं 100 is equals to 10 to the power 2. और हमें पता है log 10 to the power 2 का वैल्यू कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. 2 will come here and value of log 10 will be, log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1. So 2 into 1 will give you 2. तो put here the value of log K is into 2. तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे you will get the result this one. So because I already have solved these questions, so I know the answers. So the answer will be -2743 Kelvin calorie per mole. Okay, move to the next one. तो आपने देखा क्वेश्चन काफी इजी थे, जस्ट इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. ये क्वेश्चन भी जून 2012 का है एंड दैट्स 2 इन द पार्ट सी. दोनों क्वेश्चंस ठीक है. अब आप देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है. बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस. फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन is added to 0.1 molar glucose 1-phosphate. The standard free energy change of the reaction glucose 6-phosphate to glucose
one phosphate is 1.6 kilocalorie per Kelvin calorie per mole at 25 degrees Celsius. The equilibrium constant of G6P and glucose 6 phosphate and glucose 1 phosphate respectively are. अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, only we have given the concentration. तो इससे हम लोग कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, but one thing we can conclude here is that जो वैल्यू दिया हुआ है हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी का, दैट इज इन प्लस वैल्यू. सो वी नो दैट अगर प्लस वैल्यू दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल, रेदर जो रिएक्शन यहाँ पर फेवरेबल होगा दैट विल बी रिवर्स रिएक्शन. इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि जितना G1 यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है उतना ही अमाउंट में उसी रेट पे आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होगा. मतलब इक्विलिब्रियम में जितना ये इधर और जा रहा है वैसे ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये रिवर्स होकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है. तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन पे है या ये बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन पे होगा इक्विलिब्रियम में. इनिशियल कंडीशन में जब बिल्कुल स्टार्ट होता है रिएक्शन, ऑन दैट कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैन हैव द कंसंट्रेशन ऑफ जीरो. लेकिन एट इक्विलिब्रियम इज इट पॉसिबल कि रिएक्शन जो कंसंट्रेशन हो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जीरो हो? इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये 100% और ये 0% हो, या बिल्कुल जब आपका कंज्यूम हो जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि ऑल जब कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन बी एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन क्या है यहाँ पर वैसा तो नहीं कि रिएक्शन हैज नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, तो क्या है, द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कुछ कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा कुछ कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा, बट here the value of Gibbs free energy is in positive, so the reverse reaction is favored. Standard free energy is in positive, so reverse reaction is favored. अगर नेगेटिव में होता इसका मतलब क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होता. तो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड होगा. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या ज्यादा, किसका ज्यादा होना चाहिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. तो आप देखो इस हर एक ऑप्शन में देखो only one fits as per our conclusion, so answer will be number 1. next question, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है मैंने थर्मोडायनामिक्स में इसके जो फॉर्मूला होते हैं, सिंपल फॉर्मूला होते हैं, आई हैवंट मेंशन दैट. तो मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला एक दे देती हूँ. आपको क्या करना है, सारे का वैल्यू बस उस फॉर्मूला में पुट कर देना एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर. सो द फॉर्मूला इज where del G you have to calculate, del H is given or the which is given at the melting temperature. Actually the question is that कि आप scanning calorimetric study में आप thymus DNA का denaturation कर रहे हो. We know that each during denaturation of DNA we have a certain melting point of the DNA where melting point of DNA कहने का मतलब क्या है, half of the concentration of DNA can have denatured. ठीक है, तो so Tm is the melting point of the temperature. At this melting point enthalpy is given. ठीक है, Cp or the constant pressure heat capacity change is given here, and as per the question del Gp is equals to 0. तो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, आपका ये वैल्यू कम्प्लीटली जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो आपको सिर्फ फॉर्मूला इन सब पे पुट करना है एंड यू विल इजिली व्हेन विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट द योर आंसर. क्योंकि Tm आपका दिया हुआ है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 75.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे आप. ठीक है, डेल एच एम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे आपका एंथैल्पी दिया हुआ है. सो एंथैल्पी इज गिवन 50.4 केल्विन कैलोरी पर मोल. तो आपका डेल जी आप इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे. ठीक है, सो यू कैन सी दैट कोई भी क्वेश्चंस मैथमेटिकल क्वेश्चंस होता है जनरली फॉर्मूला पे बेस्ड. आपको क्या करना था, जस्ट फॉर्मूला आपको याद करना था. तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आपने इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. Gives free energy of binding of a ligand with a protein determined using calorimetric measurement at 25 degrees Celsius. The value of del G naught is 1.6 Kelvin calorie per mole. The binding constant for the ligand protein association is.
अगेन यू हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला, आप जस्ट फॉर्मूला पुट करोगे। यहाँ पर क्या था, पहले वाले कंडीशन में हम लोगों ने डेल जी निकाला था, इस वाले कंडीशन में हम लोग के का वैल्यू निकालोगे तो सेम फॉर्मूला पे पुट करोगे, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log के। आर का वैल्यू आप क्या यूज करोगे, कैलोरीज में है, सो यू विल यूज ये 1.99 अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली ये 1.987 कुछ होता है, तो मैंने राउंड फिगर लिया हुआ है 1.99, ठीक है, पर केल्विन पर मोल पर कैलोरी, सॉरी कैलोरी, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। डेल जी नॉट दिया हुआ है 1.36 इक्वल्स टू -2.303, आर का वैल्यू आप पुट करो 1.99 इंटू टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 25, एंड 25 प्लस 273 विच विल गिव यू 298 log के। अब आप इन इतने वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट log k इक्वल्स टू 10 to the power -3। अब log k का क्या करना है, इधर लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ 10 to the power -3। तो k का वैल्यू आप एंटी लॉग 10 to the power -3 लिखोगे तो एंटी लॉग क्या होता है 10 to the power -3 का 1.002, ठीक है। तो क्या होगा आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आ गया 1, सो द आंसर विल बी नंबर सी। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है, यू हैव टू कैलकुलेट हियर द वैल्यू ऑफ के और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप देखो 2012 पार्ट सी में यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया, सिमिलर क्वेश्चंस आपके 2014 में आ गए पार्ट सी में। तो अब इजिली क्या है, आप देखो क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, नॉट द सेम क्वेश्चंस बट द सेम पैटर्न। अब क्या हुआ यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज ही तो चेंज किया है उन्होंने, बाकी सारा सब कुछ तो सेम है, सो ओनली दिस थिंग इज चेंजिंग। तो आप ये क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करिए, मैंने आंसर बता दिया है, आंसर इज 1000। तो यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, अगर नहीं बनेगा देन आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे थे, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कम द रिएक्शन ऑफ ग्लूटामेट एंड अमोनियम टू ग्लूटामेट एंड वाटर हैज अ वैल्यू ऑफ +14 किलोजूल पर मोल for del G naught. This is coupled with the ATP reaction. मतलब ये जो हमारा ग्लूटामेट अमोनिया ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामाइन में, दैट इज कपल्ड विद एटीपी के डिसोसिएशन से ये कपल्ड है। तो एटीपी के डिसोसिएशन, एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज रिलीजिंग -30 किलोजूल पर मोल, ठीक है, सॉरी केल्विन जूल पर मोल। तो आपका -30 केल्विन जूल पर मोल आ रहा है और यहाँ पर क्या है +14 केल्विन जूल पर मोल कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल एनर्जी, अगर आप एक वेसल्स में 10 ग्लास ऑफ वाटर डालते हो और 2 अगर निकाल लेते हो, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन दैट, व्हाट यू डू, इट इज इन माइनस एंड इट इज इन प्लस, तो +10 -2 यही करते हो ना। सिमिलरली यू हैव टू डू द सेम थिंग, एक रिएक्शन में +14 किलो केल्विन जूल्स पर मोल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और उसी वेसल्स में -30 केल्विन जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है, डाला जा रहा है। तो आपका नेट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, तो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, सो आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस कर दोगे, इससे यू विल गेट -16। सिंपल था ना ये क्वेश्चन। तो बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में आता है, ये सारे के सारे पार्ट सी में आ रहे हैं, तो आपके 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स। सो बी हैप्पी अगर थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन द फॉर्मूलाज एंड गिवन द ओवरव्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन माय लास्ट क्लास। तो अगर आपने मिस किया था, आई गिवन द लिंक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करो, वंस पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आपको ये प्रोटीन का सीक्वेंस दिया है एंड फ्रॉम दिस सीक्वेंस यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ दिस प्रोटीन। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने मेल किया था। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।